Hello and welcome everyone. In this video, I'll be starting new chapter for Standard 12 English medium students. That chapter is chapter number 6, Electromagnetic Induction. As far as this chapter is concerned, it involves 10 topics, 11 illustrations and 10 exercise sums. And we all know that due to the pandemic situation, government has announced the course reduction and the topics which are removed from this particular chapter involves topic number 6.2 and topic number 6.8. Although 6.2 is somewhat related to other topics also. So I'll be explaining you that 6.2 topic in short, but as 6.8 is not further related to any other topic, so I won't be discussing about that topic. Yeah, and the language is used in order to explain you in a better manner is a mixture of English and Hindi. Yeah, so let's start the very first topic, which is topic 6.1, which is introduction. So normally whenever I used to start the chapter, I used to make my students understand about the meaning of the name of the chapter. Here also the name of the chapter is so unique. You definitely might be thinking, oh, what is the meaning of the name of the chapter? Electromagnetic induction. Actually, electromagnetic induction is a amalgamation of two branches of physics. इसमें एक हिस्ट्री है, मतलब इंट्रोडक्शन में आपको यही हिस्ट्री बताई गई है कि इनिशियली क्या होता था कि भाई इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वर कंसिडर्ड टू डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स व्हिच वर एक्चुअली सो आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ after the invention which was led by Oersted, Ampere and few other scientists, which made it possible that इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर. मतलब उन्होंने क्या बताया था, आप जानते ही होंगे, चैप्टर नंबर 4 में आप अच्छी तरीके से पढ़े हुए हो. ये मतलब ये चीज है इंट्रोडक्शन में, मतलब चैप्टर 4 की इंट्रोडक्शन में भी यही बातें सिखाई जाती है आपको कि व्हाट वाज द इन्वेंशन ऑफ ऑस्टेड. इनफैक्ट दिस इज पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड 10th आल्सो. सो ऑस्टेड through his experiments proved that whenever electric current is passed through a conductor, magnetic needle which is placed in nearby region of it gets deflected. What does that mean? That due to electricity in the nearby region we can obtain magnetic field. So उन्होंने ये बताया, तब से लोगों को विश्वास हुआ कि नहीं, electricity and magnetism are related to each other. So this was somewhat like proof that electricity and magnetism is interrelated to each other. But by doing this thing, मतलब जब उन्होंने ये डिस्कवरी करी कि भाई इलेक्ट्रिक करंट की माध्यम से हम मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन कर सकते हैं, तो इमीडिएट नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों के दिमाग में चालू हो गया कि भाई अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन कर सकते हैं तो क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है? मतलब इज द कन्वर्स ऑफ दिस फिनोमेना पॉसिबल? दैट इज, कैन वी ऑब्टेन इलेक्ट्रिक करंट विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? क्या हम ये ऑब्टेन कर सकते हैं? तो मतलब उसी के बारे में इंट्रोडक्शन में बताया गया. दैट्स व्हाट आई हैव रिटन एक्चुअली. सो यू माइट मतलब यू कैन सी इट वेरी वेरी फास्टली. और ये आपको लिखना है, आप अच्छी तरीके से जानते होंगे. मतलब अब मैं क्लियर कर देता हूँ भाई, ये चीजें नहीं पूछी जाएगी. इंट्रोडक्शन इज नॉर्मली नॉट आस्क्ड बट इट्स नेसेसरी in order to provide the base of the particular chapter. Yeah, that's why I used to give my 5 to 6 minutes in this introduction. Each and every introduction of each and every particular chapter. Okay, so electricity and magnetism were considered the unrelated and separate branches of physics. Yeah, but Oersted and Ampere and few others made it possible, established a fact that electricity and magnetism are interrelated by various experiments. Actually, they found that electric current deflects a magnetic compass needle placed in its vicinity. That's what I have explained, and that's what you might be well aware of. ये चीजें बहुत समझाने की जरूरत नहीं है. So next point में यही लिखा है. तो तुरंत एक क्वेश्चन आया लोगों के दिमाग में कि भाई अगर इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से हम मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन कर सकते हैं, तो क्या हम मैग्नेटिक फील्ड की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं? एंड दिस नेचुरली रोज अ क्वेश्चन that is the converse effect of producing electric current possible using magnetic field. तो इसका आंसर 1830s में लिटिल बिट मतलब 30s में ही बताया था. 1830s, nearly in 1830 was given by two scientists. Yeah, those includes Michael Faraday and Joseph Henry. By means of various experiment proved this fact, मतलब made it possible. उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करें और ये साबित कर दिया कि भाई हाँ,
मैग्नेटिक फील्ड, इनफैक्ट मैंने लाल अक्षरों से लिखा है भाई, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, विद द हेल्प ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड वी कैन ऑब्टेन इलेक्ट्रिक करंट। ये पॉइंट आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना एंड फोकस भी करना। फैराडे एंड हेनरी डेमोन्स्ट्रेटेड कंक्लूसिवली that electric currents were induced in a closed coils when subjected to changing magnetic field. Although you will get the आपको थोड़ा और ज्यादा तब मालूम पड़ेगा जब हम उसके एक्सपेरिमेंट्स में, दैट इज टॉपिक नंबर 6.2 जो गवर्नमेंट ने सिलेबस में से निकाल दिया है, जो कि मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि अगर वो क्लैरिटी आएगी आपको तभी आप बात की बातें अच्छे से समझ पाओगे। सो वी विल बी गोइंग फॉर टू दैट थिंग, बट ये ऊपर से है, मतलब इसी पे चैप्टर का नाम रखा हुआ है, राइट। सो व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मींस इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करना, इंड्यूस करना, किसके माध्यम से? ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। दैट्स व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ये टॉपिक में से आपको क्या याद रखना है? केवल ये ब्लू कलर मतलब ब्लू मार्कर से लिखा हुआ इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, द फिनोमेना in which electric current is generated by varying magnetic field is called electromagnetic induction। मतलब आगे जाके एक्सपेरिमेंट्स में पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट नेसेसरी, बट चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज नेसेसरी। मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ही वो कारण है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकते हैं कोई भी क्लोज कॉइल में, और यही फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाता है। होप सो इट इज लिटिल बिट क्लियर, राइट। अगर नहीं मालूम पड़ा है तो फिर से रिवाइंड कर लीजिए 5 मिनट वाला पोर्शन और आप डेफिनेटली समझ पाओगे, राइट। सो फटाफट से इंट्रोडक्शन टाइटल लिख के इतनी 4-5 पॉइंट जैसे मैंने लिखे आप फटाफट से नोट कर लीजिए, वेरी फास्ट। Okay, so now topic number 6.2, which are the experiments of Faraday and Henry, जिसकी बदौलत उन्होंने बताया कि नहीं भाई हम इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, पूरे चैप्टर में यही शब्द बार बार घूमेगा। सो इट्स नेसेसरी टू बी वेरी फोकस्ड व्हाइल दिस एक्सपेरिमेंट्स आर टॉट, राइट। सो लेट्स गो फॉर द एक्सपेरिमेंट्स। एक्चुअली फैराडे ने 3 एक्सपेरिमेंट्स करे थे, वो तीनों एक्सपेरिमेंट्स मतलब फिलहाल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ऑफ अदर टॉपिक्स इट्स नेसेसरी। सो मैंने जैसे लिखा है आपको वैसे ही लिखना है। पहले समझ लीजिए शांति से कि उन्होंने करा क्या था। सो वेरी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, दिस एक्सपेरिमेंट इज बेसिकली टाइटल्ड एज द एक्सपेरिमेंट ऑफ बार मैग्नेट एंड कॉइल। सो मतलब बार मैग्नेट और कॉइल उन्होंने यूज करी थी, इसलिए उसका टाइटल ऐसे ही दिया जाता है बेसिकली। सो हमारा मेन एम क्या है, आप शांति से सोचना। व्हाट इज आवर मेन एम? आवर मेन एम इज कैन वी ऑब्टेन इलेक्ट्रिक करंट? क्या हम इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? सो आवर मेन एम इज टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को चेक करने के लिए कौन से डिवाइस हम यूज करते हैं? दैट्स अ कॉमन क्वेश्चन। जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं आप वीडियो पॉज करिए, दिमाग में सोचिए, फिर प्ले करिए, फिर मेरा आंसर चेक करिए क्या आंसर मैच होता है। दैट्स अ कॉमन आइडिया ऑफ आवर वीडियोस। सो या व्हिच इज दैट डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू चेक द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि भाई मतलब मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि भाई क्या मैं ये कॉइल में कैन आई जनरेट मतलब कैन आई प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज दिस कॉइल C1। तो उसका मतलब हाउ विल वी डिटेक्ट दैट इलेक्ट्रिक करंट? सो इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर ज्वाइन कर सकते हैं। शायद आपने यही सोचा होगा, राइट। सो डेफिनेटली विल बी मतलब कनेक्टिंग अ गैल्वेनोमीटर। लेट अस से वी हैव कनेक्टेड अ गैल्वेनोमीटर इन दिस सर्किट। तो आप सोचिए, शांति से समझना, शांति से उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करा, पूरी प्रोसेस। हालांकि मैंने यहाँ पे तो सिर्फ कंक्लूजन लिखा है, एक्सपेरिमेंट में प्रोसेस नहीं लिखी है। सो उन्होंने एक बार मैग्नेट लिया, एक कॉइल ली और उसके साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर लिया इन ऑर्डर टू चेक वेदर द इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड इन दिस कॉइल और नॉट। सो अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर उन्होंने ये कैसे करा? सो फर्स्ट ऑफ मतलब इफ आई आस्क यू सिंपल रैंडमली, आप सोचिए कि भाई ये बार मैग्नेट है तो उसकी बजाय मतलब उसकी बदौलत हमको क्या मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड। सो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज ट्रैवल्स फ्रॉम मतलब
from north pole to the south pole, and inside the magnet it travels from south to north. Yeah, in a way they do form a closed loop. Again, you must be very clear of that thing also. So मैग्नेटिक फील्ड होगी भाई, तो मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है जो मतलब ये जनरेट कर रहा है. So these are the magnetic field lines, magnetic field lines of this particular magnet, right? तो मतलब आप सोचिए कि इज इट पॉसिबल, मतलब हालांकि आपको सोचने की जरूरत नहीं है, सॉरी फॉर दैट. दिस इज अ एक्सपेरिमेंट, मींस इन द केस ऑफ एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंट से हमको क्या सीखना है, मतलब क्या, मतलब वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि मतलब उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट करा तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा. ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन्स आर दी नोटवर्थी पॉइंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट. और वही, क्योंकि हमको अपना दिमाग नहीं लगाना है प्रेजेंटली, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व करा इनिशियली, मतलब बार मैग्नेट लिया और कॉइल लिया, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि गैलोमीटर कोई डिफ्लेक्शन दिखाता नहीं था. सो राइट, इट वाज एट जीरो. नॉर्मली यू माइट बी अवेयर ऑफ दिस थिंग. दिस इज, मतलब दोनों साइड डिफ्लेक्शन दिखाता है भाई वो. सो प्रेजेंटली इट वाज एट जीरो व्हेन Faraday took such kind of case. तो मतलब एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने, मतलब बहुत ट्रायल एंड एरर्स होते हैं भाई, तो उन्होंने ये बार मैग्नेट को मूव करा, मतलब ऐसे ही जैसे मूव करा. सो as soon as you move the bar magnet, you can understand that the मैग्नेटिक फील्ड विच इज लिंक्ड विद दिस कॉइल, मतलब ये कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जुड़ी हुई थी, क्योंकि आपने इसको हिलाया, कैन वी से दैट इट गॉट चेंज्ड. सो यह होने के कारण उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि अगर मैं इसको रिलेटिवली मूव करता हूं, मतलब इसको स्टडी रख के इसको मूव करता हूं, देन ही ऑब्जर्व अ डिफ्लेक्शन. मान लीजिए मैं जब इसको नजदीक लेके आया तो डिफ्लेक्शन, मतलब ये पॉइंटर, गैलोमीटर का पॉइंटर राइट साइड घुमा, राइट, मतलब व्हाट डज राइट एंड लेफ्ट इन गैलोमीटर इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन. तो मतलब मान लीजिए नॉर्थ को नजदीक लाते वक्त अगर राइट साइड घुमा है, तो नॉर्थ को दूर ले जाते वक्त किस तरफ घूमेगा? डेफिनेटली इट विल मूव टुवर्ड्स मतलब लेफ्ट साइड. सो उन्होंने यही ऑब्जर्व करा कि भाई, मतलब जब दोनों को स्टेडी रखा था कुछ नहीं हुआ, बट व्हेन देयर वाज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन बार मैग्नेट एंड कॉइल, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. रिलेटिव मोशन मतलब क्या, कि मतलब एक को स्टेडी रख के दूसरे को मूव करो, या तो फिर दूसरे को स्टेडी रख के पहले को मूव करो, या तो फिर दोनों को मूव करो लेकिन अलग अलग वेलोसिटी से, तो भी स्टेडी, तभी रिलेटिव चीजें बोली जाती है भाई. अच्छा, तो हाँ, उन्होंने यही ऑब्जर्व करा और उन्होंने एक कंक्लूजन दे दिया, गैलोमीटर डिफ्लेक्ट हुआ मतलब सक्सेसफुल, इलेक्ट्रिक करंट मिला. तो उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया, इवन रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल इज नेसेसरी एंड दैट्स द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर इंड्यूसिंग शब्द आपको दिमाग में चलेगा, मतलब इंडक्शन, इंड्यूसिंग मतलब जनरेटिंग, is responsible for inducing electric current in the coil. That's what the experiment main conclusion is. अब आप सोचिए कि अगर मैंने नॉर्थ की बजाय साउथ पोल में पहले लाता, अगर if I have brought, मतलब if I have faced, if the south pole of the magnet was at this side, then what might be the case. आप सोचिए अगर मैं साउथ को नजदीक लेके आता तो क्या होता कि पहले जब ये पहले पॉइंटर राइट साइड घुमा था ना, तो अब राइट साइड नहीं घूमेगा, पहले ये लेफ्ट साइड घूमेगा. फिर मान लीजिए साउथ को दूर लेके गया मैं, तो ये राइट साइड घूमेगा. दैट्स टोटली अपोजिट, रिवर्स डायरेक्शन. दैट इज, मतलब दोस आर फैक्टर्स आल्सो रिटन. मतलब मान लीजिए कि मतलब इसको मैंने बहुत स्पीड ली, ये ऐसा बहुत स्पीड से किया, तो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज जनरेटेड, दैट इज प्रोड्यूस्ड, दैट इज इंड्यूस्ड इज लार्जर. बहुत धीरे धीरे करा तो लेसर. And these are the few basic conclusions that he observed, and I am telling you that things. Okay, so those things. Sorry. So second important point, second important conclusion that he observed actually, direction of induced current gets reversed when the relative motion between the coil is reversed. Simple. अगर relative motion अपने उल्टा कर दिया तो
direction of electric current will also get reduced, altered, and if relative motion is increased, more current is induced. If it is decreased, less current is induced. ज्यादा स्पीड से करोगे तो ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, कम स्पीड से करोगे तो कम इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा. फिर से एक बार क्लैरिटी रखो, इसमें हमको सिर्फ सीखना है, अपना लॉजिक नहीं डालना है इसके अंदर. राइट, डाल भी नहीं पाओगे क्योंकि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करा हमको क्या मालूम. हम तो आप तो पहली बार पढ़ रहे हो उसको. सो यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द अरेंजमेंट एंड द प्रोसीजर, द ऑब्जर्वेशंस एंड फाइनली द कंक्लूजंस. या दिस वाज द वेरी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट. बहुत जल्दी से, नॉर्थ पोल कॉइल, a bar magnet coil and a galvanometer to check whether we are inducing, we are getting the electric current or not. When the bar magnet was moved, he observed that the galvanometer, the pointer of the galvanometer showed the deflection, which means relative motion is the only responsible factor here in order to induce electric current. That's the very first experiment. Second experiment. That experiment is titled as experiments of two coils. Definitely. Herein he used two different coils, coil C1 and coil C2. अब उन्होंने क्या करा, एक कॉइल में तो चेक करना है अपने को कि भाई इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है कि नहीं. मतलब ऑलवेज विल बी कनेक्टिंग व्हाट गैलोमीटर इन दैट पर्टिकुलर कॉइल इन ऑर्डर टू चेक एक्सक्यूज मी, इन ऑर्डर टू चेक वेदर वी आर गेटिंग इलेक्ट्रिक करंट और नॉट. तो उन्होंने दूसरी कॉइल में क्या करा, ही एक्चुअली जॉइंड अ बैटरी, एक बैटरी ज्वाइन कर दी यहाँ पे. अभी विद द हेल्प ऑफ बैटरी वी गेट हाईली energized charges which move, actually indirectly get electric current. बट दिमाग के किसी कोने में ये मालूम होना चाहिए कि बैटरी का काम इलेक्ट्रिक करंट देना नहीं है, बैटरी का काम एनर्जी देना है, चार्जेस को एनर्जी देना, जिसके तहत वो मूव करेंगे और जिसके तहत अगर चार्जेस मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट अपने आप जनरेट होगा. सो वी कैन से इलेक्ट्रिक करंट विल बी जनरेटेड. अब आप ऑस्टर्ड को याद करिए, उन्होंने क्या बताया था कि अगर आप कोई भी कंडक्टर में से, दिस आर कॉइल्स मींस आर कंडक्टर ओनली, वायर्स ओनली. सो आप ऑस्टर्ड के ऑब्जर्वेशन को याद करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा. सो व्हेन यू आर करंट पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ पर्टिकुलर कॉइल, अ पर्टिकुलर कंडक्टर, व्हाट इज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी ये कॉइल के अंदर. आप देख सकते हो कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो मैंने ब्लू मार्कर से दिखाई है वो इनडायरेक्टली इसके साथ लिंक होती है. भाई लिंक होती कि नहीं? हाँ. तो उन्होंने इनिशियली यही ऑब्जर्व करा कि भाई भले ही इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करने से इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक हुई, लेकिन ये गैलोमीटर ने कुछ दिखाया नहीं. तो उन्होंने हाँ भाई एक्सपेरिमेंट करना है, ट्रायल एंड एरर, जो भी आप कर सको वो करना था. तो उन्होंने भी ट्राई करा. क्या किया उन्होंने, ये कॉइल को मूव किया. सो he moved this coil towards this way. Again, when he moved this coil nearby to the other coil, what he observed? He observed a successfulness. मतलब हमको deviation दिखा, deflection दिखा पॉइंटर का, which means electric current is induced. तो आप सोचिए, जब बैटरी में से स्टेडी करंट पास हो रहा था, सिंपल है, स्टेडी करंट करंट पास हो रहा था, तब भी मैग्नेटिक फील्ड थी. तो ऐसा तो क्या किया उन्होंने कि जिसके तहत इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हुआ. सिंपल वे, रिलेटिव मोशन अगेन बिटवीन टू कॉइल्स, रिलेटिव मोशन इज नेसेसरी. दैट्स व्हाट द कंक्लूजन इज. रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू कॉइल्स इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट. होप सो दिस इज आल्सो क्लियर. बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है. शांति से ये सोचना, अगर इसको ऐसे ही रखेंगे, आप सोचिए इसकी स्पीड अगर मैंने 5 मीटर पर सेकेंड इस तरह रख दी और इसको भी मैंने मूव करा 1 मीटर पर सेकेंड से, क्या इसमें इंड्यूस होगा? क्या इसमें इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा? हाँ होगा ही. क्यों? रिलेटिव मोशन है. अब आप सोच लीजिए, इसी को मैंने इस तरफ 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से घुमाया, तो क्या अभी इसमें इंड्यूस होगा? अगेन इट विल बी इंड्यूस. मान लीजिए इसको स्टेडी रखा, 0, तो निश्चित रूप से होगा. पर मान लीजिए मैंने इसको 5 मीटर पर सेकेंड से इसी स्पीड में इसी डायरेक्शन में मूव करा, तब ये नहीं होगा. क्यों? देयर इज नो रिलेटिव मोशन. होप सो इट इज अगेन वेरी क्लियर. या लेट्स मूव फर्दर. भाई रिलेटिव मोशन का फंडा स्टैंडर्ड 11 में अच्छे से पढ़ लिया आपने. लास्ट एक्सपेरिमेंट विच इज बेसिकली द हिस्टोरिक एक्सपेरिमेंट. दिस इज द हिस्टोरिक एक्सपेरिमेंट. उन्होंने जितने एक्सपेरिमेंट करे उनमें से ये हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट है, जो पुराना सिलेबस था ना जीएसबी का,
उसके अंदर ये पहला एक्सपेरिमेंट दिया था, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट विच वाज परफॉर्म बाय फैराडे। या इट्स इम्पोर्टेंट, इट वाज इम्पोर्टेंट, बट आपके लिए एग्जाम में अभी तो फिलहाल ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सो ये एक्सपेरिमेंट का टाइटल क्या है? तो भाई ये एक्सपेरिमेंट 2 कॉइल उन्होंने ली थी और एक टैपिंग की। अब अंत में बोलना कि आपने ये टैपिंग की आपके घर में कहाँ पे देखी है, मतलब कमेंट करना इफ यू आर गेटिंग दैट पॉइंट एक्चुअली। ओके, सो व्हाट एक्चुअली ही डिड, मतलब उन्होंने अरेंजमेंट किस प्रकार करी? तो उन्होंने 2 कॉइल ली। एक कॉइल में एज यूजुअल हमको चेक करना है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट ये वाले कॉइल में जनरेट होता है कि नहीं। तो मतलब चेक करने के लिए गैलोमीटर ज्वाइन कर लीजिए। भाई आपको अगर गैलोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाता है, दैट मींस देयर इज इलेक्ट्रिक करंट इन दिस पर्टिकुलर कॉइल। प्रेजेंटली नहीं है। तो उन्होंने क्या करा एक्चुअली में, उन्होंने बैटरी ज्वाइन करी और उसके साथ भाई एक टैपिंग की ज्वाइन कर दी। अभी टैपिंग की का मतलब क्या होता है? अब जब आप पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। मैंने आई विल एक्सप्लेन यू, देन यू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग। दिस इज टैपिंग की। ओके, सो जैसे इसको हम प्रेस करते हैं ना, दिस सर्किट गेट्स कनेक्टेड। एज सुन एज आई प्रेस दिस, इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। अगर इलेक्ट्रिक, मतलब आप सोचिए मैंने इसको प्रेस करा तो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। इलेक्ट्रिक करंट अगर कॉइल में से पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी ये कॉइल के अंदर, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के तहत। तो ये मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनफैक्ट इट विल कट दिस कॉइल, बट अनफॉर्चुनेटली मतलब हताशा, सिंपल है भाई। इसके अंदर उन्होंने ये ऑब्जर्व करा, हालांकि हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम मतलब वो पढ़ रहे हैं उन्होंने जो करा। सो ही ऑब्जर्व दैट व्हेनेवर we are passing, मतलब we are pressing this tapping key, so steady current passes through it, steady current passes, and the magnetic field lines gets linked to this, but there is no deflection in this, which means that there is no electric current induced. तो अगर हम होते तो मतलब we might have stopped doing the experiment, but he did it so many times। और उन्होंने मतलब ये टैपिंग की जैसे ही छोड़ दी ना, जैसे ही ऑन थी और ऐसे छोड़ दी मतलब आप समझ सकते हो अपने घर में इलेक्ट्रिक बेल होता है ना, इलेक्ट्रिक बेल जैसे हम क्लिक करते हैं और फिर छोड़ देंगे तो वापस आ जाएगा अपने पास। तो उसको ऑन रखने के लिए उसने दबा के रखना पड़ता है। जैसे हम छोड़ देंगे ना, सो इट विल गेट रिलीज्ड, सो द सर्किट गेट्स डिस्कनेक्टेड। तो एज सुन एज ही डिस्कनेक्टेड दैट की, he observed that this showed a momentary deflection। भाई कंटिन्यूस डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। आप सोचिए कंटिन्यूस, मतलब अब आप अंत में जवाब देना कि भी कंटिन्यूस डिफ्लेक्शन लाना हो अगर तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने प्रेस करा, कुछ नहीं हुआ, छोड़ दिया, हुआ, फिर से प्रेस करा, हुआ। मतलब दबा के रखोगे तो स्टेडी करंट पास होगा, उससे इसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप रिलीज कर दोगे तो ऑफ, मतलब करंट ऑफ, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ। तो ये हिला थोड़ा मोमेंटरली, क्षण भर, फिर से प्रेस करा, फिर से हिला, फिर से छोड़ दिया, फिर से हिला, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, मतलब टैप करने से भी हिला और रिलीज करने से, लेकिन दबा के रखने से या तो फिर ऑफ रखने से कॉन्टिन्यूसली कुछ नहीं होगा भाई। तो उसमें उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि भाई इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करने के लिए स्टेडी करंट इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप स्टेडी करंट पास करोगे सो नो इलेक्ट्रिक करंट विल इंड्यूस इन द अदर कॉइल। सो व्हाट्स नेसेसरी? इट्स चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट विच इज नेसेसरी। पहले जीरो से करंट पास करा तो हुआ, फिर करंट से जीरो कर दिया, फिर जीरो से आई से जीरो, आई से जीरो से आई, ऐसा करने से इसमें इंड्यूस हुआ। होप्स यू आर गेटिंग, दैट्स व्हाट आई हैव रिटन। स्टेडी करंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट चेंज ऑफ करंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट। और इसमें एक और चीज मालूम पड़ी, आप सोचिए 2 कॉइल तो इसमें भी यूज करी थी, बैटरी भी इसमें यूज करी थी। तो हमने यहाँ पे लिखा था कि रिलेटिव मोशन इज दैट थिंग विच इज इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट। बट आपको ऐसा पूछ सकते हैं वो लोग कि भाई एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट इन विच सजेस्ट दैट रिलेटिव मोशन इज नॉट अ कंपल्शन। हर वक्त जरूरी नहीं है अभी, इसमें हमने रिलेटिव मोशन नहीं दिया है, फिर भी हम इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस कर देते हैं। सो रिलेटिव मोशन इज ऑलवेज नेसेसरी, नॉट ऑलवेज नेसेसरी। हालांकि मैंने गलती कर दी, सॉरी। रिलेटिव मोशन इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। हर बार जरूरत नहीं है भाई,
आप ऐसे अरेंजमेंट करके भी कर सकते हो आसानी से। बट होप सो दिस इज क्लियर आपको। और एक बार क्लियर कर देता हूँ, ये पूछने वाली चीज नहीं है फिलहाल आपके एग्जाम के लिए। भाई मई 21 में जो एग्जाम होने वाली है, इसमें एक पोर्शन नहीं आएगा, लेकिन आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए। कौन कौन सी? कि भाई रिलेटिव मोशन होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड जो दूसरे कॉइल की है वो चेंज होगी। दैट्स वाई अगेन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी। आप कुछ भी करके ऑलवेज ट्राई टू डू वन थिंग, ऑलवेज ट्राई टू चेंज द मैग्नेटिक फील्ड इन इन योर वे। आप सोचिए कि भाई मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज करूं, तभी मैं इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस कर पाऊंगा। सो दैट्स व्हाट हम आगे एक फैक्टर सीखेंगे, आगे एक क्वांटिटी सीखेंगे और मालूम पड़ेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे चैप्टर में जाते जाएंगे आपको और मालूम पड़ता जाएगा। सो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रखी तब कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही इसको नजदीक लाए तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ करंट इंड्यूस हुआ। इसमें भी ऐसा हुआ कि रिलेटिव मोशन दिया तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, तो इसलिए उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हुआ। द सेम थिंग इज ओवर हियर। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट पास करने से इसकी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट थी, पर जैसे ही हमने टैपिंग की को रिलीज करी या तो फिर से प्रेस करी, रिलीज करी, प्रेस करी, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड अगेन चेंज हुई। दैट मींस अगेन वी आर हैविंग द इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस। सो दैट्स ऑल 3 एक्सपेरिमेंट्स। फटाफट से ड्रॉ कर लीजिए। और एक चीज सिखानी थी मेरे को कि आपको ये जजमेंट लेना आना चाहिए, हालांकि ड्राइंग करते वक्त, कि भाई कौन सी चीज आगे की है और कौन सी चीज पीछे की है। बिकॉज इन आगे जाके सीखेंगे हम लोग कि भाई करंट तो इंड्यूस हो रहा है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। मैंने जो ये कॉइल ड्रॉ करी है ना, आप शांति से फोकस करिए मैंने कैसे ड्रॉ करनी है। आपको कंटेंट में लिखनी है, मैंने एक्सप्लेन करा है, आपको लिखनी भी है। सो आप ध्यान से सोचोगे, सो यू विल सी भाई ये पोर्शन, और ऐसे जाके मैंने पीछे ड्रॉ करा। कौन सा आगे का पार्ट है कौन सा पीछे का है, दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। दिस इज बैकवर्ड, पीछे का पोर्शन है, और ये जो पोर्शन है दैट्स फ्रंट। गेटिंग माय पॉइंट? ये डॉटेड लाइन दिखाई है वो बैकवर्ड पोर्शन है, ये कंटिन्यूअस लाइन जो दिखाई है वो फ्रंट का पोर्शन है। आपको फ्रंट और बैक के पोर्शन में मालूम होना चाहिए। देखिए आप, ये सर्किट जा रही है, ऐसे ऐसे ड्रॉ करके मैंने ये दिखाया है, ये आगे का पोर्शन है, ये पीछे का पीछे का पोर्शन है, राइट। सो हम कैसे देखेंगे इसको? हम ऐसे देखेंगे, मैंने आई विल बी लुकिंग टू दिस कॉइल फ्रॉम दिस वे, तो मेरे को ऐसे दिखाई देगी, तो मैं ऐसा समझूंगा, मैं हर बार आगे जाके ऐसा समझाऊंगा। सो मेक श्योर यू गेट दिस पॉइंट वेरी वेरी नाइसली, कि अगर मैं ये कॉइल को फोकस करूं तो मेरे लिए ये आईना जैसा है। दिस इज द वे इट इज ड्रॉन। सामने से देखेंगे हम अगर तो अच्छे से नहीं दिखाई देगा, लेकिन साइड से देखेंगे तो पूरी कॉइल दिखाई देगी। सो यू कैन सी लाइक दिस वे कि ये जो लास्ट फिंगर है ना, सो दैट इज गोइंग, लास्ट फिंगर इंडिकेट्स द फ्रंट पोर्शन एंड द थंब इंडिकेट्स द बैक पोर्शन। सो फ्रंट कौन सा है? एफ एंड बी लिखेंगे हम लोग बार बार। डायरेक्शन वेरी क्रिटिकल, लिटिल बिट हार्ड बट कॉन्सेप्चुअल है बात। सो ये बैक है और ये फ्रंट का पोर्शन है। ऐसे जजमेंट लेना आना चाहिए, शांति से सोचना, हालांकि आगे जाके और अच्छा मालूम पड़ेगा। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन दिस सेक्शन, आप नीचे कमेंट कर सकते हो, राइट। सो फटाफट से नोट कर लीजिए क्या। Okay, so now I'm looking forward to topic number 6.3, which will be the last topic of this particular video. This will be very helpful in the upcoming video, so be very focused about this topic. Yeah, magnetic flux. आपने सुना ही है भाई, फ्लक्स नाम तो सुना है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स ढूंढना था। जैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करते थे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के लिए, वैसे ही हम मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए। बेसिकली मान लीजिए आपके पास कोई रेंडम, let us say you're having a magnetic field like this way, और उसमें आप एक सरफेस रखते हो जिसका एरिया वेक्टर डेफिनेटली इट विल बी गोइंग लाइक दिस वे। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट पर्टिकुलर सरफेस। तो आप देख सकते हो, अगर मेरे को ऐसे सरफेस के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स ढूंढना है, फ्लक्स इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस परपेंडिकुलरली। सिंस it is the case of magnetic flux, it will be the number of
magnetic field lines crossing that particular मतलब crossing the given surface normally मतलब perpendicularly, that's known as magnetic flux associated with that particular surface. तो ऐसे सरफेस के लिए जिसका एरिया वेक्टर ऐसा है और मतलब मैग्नेटिक फील्ड आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो हॉरिजॉन्टल है, दोनों के बीच में एंगल है थीटा, तो ऐसे सरफेस के लिए हम मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे डिफाइन करेंगे? पहले तो उसका सिंबल तो वही है फाई, बट अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहो तो नीचे सफिक्स में बी लिख सकते हो, जस्ट एज टू डिफरेंशिएट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट? सो फ्लक्स कैसे डिफाइन करेंगे? इट्स बी डॉट ए, बी डॉट ए, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, right, at that particular element या तो फिर at that particular surface, and A is the area vector. So according to the rule of dot product BA cos theta, where theta is the angle between B and A. Very simple to understand. फटाफट से बोल दे रहा हूँ भाई ये किस प्रकार की क्वांटिटी है? भाई ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें स्केलर प्रोडक्ट आता है, आसान, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. या नेक्स्ट इज व्हाट इज द यूनिट? यूनिट अगर देखेंगे तो टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर, या टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर को प्रेम से मतलब शॉर्ट में हम वेबर भी बोलते हैं, सिंबॉलिकली डब्ल्यू बी. दैट्स व्हाट, मतलब आपको आना चाहिए, इतना क्लैरिटी होनी चाहिए आपको. लिखना क्या है वहां पे ऑलरेडी मैंने लिखा है, लेकिन ये जो केस था ना मैंने समझा था वो यहाँ पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को देखोगे सो दैट्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. व्हाट फॉर द केस इफ यू आर नॉट गिवन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं तो मतलब नॉर्मली स्टूडेंट्स को ऐसे ही सिखाता हूँ, हालांकि मैंने टेक्स्ट बुक के अनुसार मतलब हिसाब से लिखा है मैंने, लेकिन फिर भी आप ऐसे याद रखो. मतलब मान लीजिए आपके पास रेंडमली कोई एक सरफेस है और मतलब मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे, मान लीजिए ये वाले सरफेस में मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कुछ है भाई, यू कैन क्लियरली से इट्स नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो मान लीजिए मतलब एक छोटा सा एलिमेंट, मतलब जैसे आप नॉन यूनिफॉर्म चीजों को मतलब एनकाउंटर करो ना तो उसको बहुत छोटे से टुकड़ों में तोड़ दो. आप बहुत छोटे से टुकड़े में छोटे से टुकड़े में तोड़ने से क्या होगा भाई? सो फॉर दैट पर्टिकुलर एलिमेंट दिस फील्ड विल बिकम यूनिफॉर्म, राइट? जो कि पूरे सरफेस के लिए नहीं थी, वो छोटे एलिमेंट में छोटा मतलब कितना छोटा, इतना छोटा कि आप वहां पे जो फील्ड है उसको यूनिफॉर्म मान सकते हो, राइट? एक दूसरे से बहुत बहुत नजदीक पैरेलल होगी, इक्वल डिस्टेंस पे होगी, इसलिए दैट्स व्हाई. सो मान लीजिए ये एलिमेंट जो है इसका एरिया वेक्टर ऐसे कुछ है, let us say this is dA, let us say this is dA suffix I क्यों? क्योंकि मैं मान लेता हूं कि ये ith एलिमेंट है, राइट? नंबर 1 नंबर 2 ऐसे ith एलिमेंट है, और वहां पे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है BA और इन दोनों के बीच में एंगल मान लीजिए थीटा. तो ये सिर्फ ये एलिमेंट के लिए अगर आप फ्लक्स लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, फ्लक्स मतलब फ्लक्स लिंक्ड विद ith एलिमेंट इज गिवन बाय BI डॉट DAI, राइट? फिर BA di cos theta, that's what you can do. But for the entire surface, what you can do? For the entire surface, total flux can be calculated as taking the integration, nothing else. मतलब BA into DI, या where I मतलब यहाँ पे आपको पूरा सरफेस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है जो कि सही है एक्चुअली में, कि ऐसे मान लीजिए बहुत सारे एलिमेंट्स है, मतलब मान लीजिए मतलब मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग होगी. मान लीजिए यहाँ पे B2 है, यहाँ पे B1 है, ऐसे B3 B4 और एरिया भी अलग अलग है. मान लीजिए इसका एरिया DA1 है, इसका एरिया DA2 है, तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे ढूंढेंगे? सिंपली B1 डॉट DA1 प्लस B2 डॉट DA2, ऐसे ऐसे जितने एलिमेंट्स हैं आप इकट्ठा करते जाओ. इसको शॉर्ट में लिखने के लिए मैथमेटिक्स की टेक्निक समेशन यूज करके भी आप कर सकते हो, BI DI, that's the ith element, but summation करना है all area elements का, right? बेसिकली हम मैथमेटिक्स में ऐसे भी बोलते हैं I running from 1 to मतलब n, मतलब जितने एलिमेंट्स हो, n एलिमेंट्स है अगर, सो मतलब यहाँ से 1 के मतलब 1 2 3 अप टू सो ऑन n तक आपको समेशन करना है. लेकिन यही बातें मतलब फॉर द कंटिन्यूअस समेशन, दिस कंटिन्यूअस समेशन गेट्स रिजल्टेड इनटू इंटीग्रेशन एनी हाउ, right? BA dot DA, yeah, it's entire area, areal integration, right? टोटल एरिया है, मतलब पूरे एरिया में सरफेस इंटीग्रेशन ऐसा बोल सकते हैं. हाँ, सरफेस इंटीग्रेशन भी लिख सकते हो आप, एंटायर सरफेस इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन बोल सकते हो आप. दैट्स इट्स हाउ मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ये इसमें ऐसा ही है भाई, सिर्फ इतना. हालांकि
काम की चीज ये जो ऊपर लिखा है वही है, बट ये एक्स्ट्रा वाली चीज भी बता दी क्योंकि टेक्स्ट बुक में भी मेंशन थी, हालांकि हम इसका बहुत कम यूज करेंगे. गवर्नमेंट विल बी फोकसिंग ऑन द मैग्नेटिक फ्लक्स क्वांटिटी मोर रादर देन फोकसिंग ऑन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, राइट. सो क्या लिखना है वहां पे लिखा है, फटाफट से आप कॉपी कर लीजिए. ओके, सो यू कैन सी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. यहाँ पे डिफाइन करा है मैंने, सिंबल लिखा है, स्केलर क्वांटिटी है, फिर फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स कैसे डिफाइन करते हैं वो समझाया मैंने, और बाद में नॉन यूनिफॉर्म वाला सीन भी समझाया मैंने, राइट. अंत में लिखा है ऐसा यूनिट क्या है उसका. सो दैट्स हाउ यू आर सपोज टू राइट डाउन दिस 2 मार्क्स थियरी. क्वाइट समटाइम्स इट्स आस्क्ड, राइट. सो फटाफट से कॉपी कर लीजिए आप. ओके, सो ये वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. लाइक करिए, शेयर करिए, और इफ यू आर हैविंग एनी डाउट सो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. सब्सक्राइब भी करिए सो दैट यू गेट इमीडिएटली नोटिफाइड. या बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम.